Hello students, welcome back. Today we are going to start Unit 1 Digital Documentation Advanced. Today we will cover this topic, create and apply styles in document. And in this video we will cover all these points theoretically, right? Let's start. First of all, style. What is style? In a word processor like OpenOffice.org writer, a style is a set of text formatting characteristics such as font size, color, and alignment. For example, a user could select the heading 1 style to make the text larger, blue, and bold, all without having to apply each of the different formatting characteristics individually. Most of the times, you have to set your text as your requirement, means you have to select some options from formatting toolbar. क्या होता है, जब आप कोई भी टेक्स्ट क्रिएट करते हैं तो आप किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट पर, किसी पर्टिकुलर पैराग्राफ, सेंटेंस पर आप कुछ ना कुछ फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस को अप्लाई करते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अलग अलग साइज़, कलर एंड अलाइनमेंट सबको अलग अलग जा कर के सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद में वो अप्लाई होता है। तो वर्ड प्रोसेसर में हमको एक बहुत ही यूज़फुल फीचर मिलता है जो कि है स्टाइल। इसमें क्या होता है कि डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं और उनमें कुछ अलग अलग जो फॉर्मेटिंग की प्रॉपर्टीज़ हैं उनके सेट होते हैं। सेट ऑफ द प्रॉपर्टीज़ आर देयर, जिनको कि हम एक डबल क्लिक के साथ यूज़ कर सकते हैं। मतलब किसी भी स्टाइल को अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम चूज़ कर सकते हैं और उसको हम अपने टेक्स्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। Next is types of styles. OpenOffice.org writer has 5 types of styles, right? First one is paragraph style, then character styles, then page styles, then frame styles, and then list styles. Paragraph styles affect an entire paragraph. Okay, then character styles affect a block of text inside a paragraph. Page styles affect page formatting, means page size, margin, etc. Next one is frame styles affect frames and graphics, means related to images. Next one is list styles affect numbered list and bulleted list. Sometimes our text is in list form, so we can use these type of styles in list. Next is styles and formatting window. Now you can see this is our style and formatting window. अभी हमने जो बात की थी डिफरेंट टाइप के स्टाइल्स की, वो यहाँ पर आपको सब मिलते हैं। पैराग्राफ स्टाइल, कैरेक्टर स्टाइल, फ्रेम स्टाइल, पेज स्टाइल एंड देन लिस्ट स्टाइल। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शंस और मिलते हैं, इनको हम प्रैक्टिकली देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वन इज़ फिल फॉर्मेट। फिल फॉर्मेट क्या होता है? यूज़ फिल फॉर्मेट टू अप्लाई अ स्टाइल टू मैनी डिफरेंट एरियाज क्विकली without having to go back to the styles and formatting window and double click every time. This method is quite useful when you need to format many scattered paragraphs, cells or other items with the same style. तो क्या होता है फिल फॉर्मेट में कि अगर मान लीजिए हमको कोई भी एक पर्टिकुलर स्टाइल अपने पैराग्राफ में या पेज में या कहीं पर भी अलग अलग जगह पर बार बार यूज़ करना पड़ रहा है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर स्टाइल को हम सिलेक्ट करते हैं, देन हम फिल फॉर्मेट के ऑप्शन पर जा कर के उसको सिलेक्ट करते हैं और फिर इसको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर भी हमको वो पर्टिकुलर स्टाइल को यूज़ करना होता है। वी विल सी दिस ऑप्शन प्रैक्टिकली इन द नेक्स्ट वीडियो। यूजिंग फिल फॉर्मेट मोड, open the styles and formatting window and select the style you want to apply. Click the fill format mode icon, then to apply a paragraph, page or frame style over the mouse over the paragraph, page or frame and click. To quit fill format mode,
click the fill format mode icon again to press the escape key. तो आपने देखा ये सारे स्टेप्स हैं फिल फॉर्मेट को यूज़ करने के लिए, और जब हमको फिल फॉर्मेट को यूज़ नहीं करना है तो उसको दोबारा क्लिक करके हम उस ऑप्शन को ऑफ कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट इज़ creating and updating new style from selection. Now, to update a style from a selection, open the Styles and Formatting dialog. In the document, select an item that has the format you want to adopt as a style. In the Styles and Formatting dialog, select the style you want to update. Single click, not double click. Then long click on the arrow next to the new style from selection icon and click on update style. इसमें हम क्या होता है कि अपने हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई नया स्टाइल क्रिएट कर सकते हैं और उसको हम फिर अपडेट भी करते हैं. Now load style from template or another document. You can copy styles by loading them from a template or another document. इसमें क्या होता है, देखिए हमने कोई भी एक स्टाइल को सपोज़ हमने क्रिएट किया किसी एक फ़ाइल में, तो दूसरी फ़ाइल में हम उसको वहाँ से लोड कर सकते हैं, वहाँ पर भी हम उसको यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. ओपन द डॉक्यूमेंट यू वांट टू कॉपी स्टाइल्स इनटू. In the Styles and Formatting window, long click on the arrow next to the new style from selection icon and then click on Load Styles. Next is creating a new style using drag and drop. इसमें क्या होता है, creating a new style using drag and drop. You can drag and drop a text selection into the styles and formatting window to create a new style. इसमें भी हम जैसे हमने एक नया अपना स्टाइल क्रिएट किया था वैसे ही है, बट इसमें हम क्या करते हैं, इसमें जो भी हमने स्टाइल को क्रिएट किया है उसको हम ड्रैग करके जो हमारी स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो होती है वहाँ पर हम ले आते हैं, ड्रॉप कर देते हैं और वहाँ पर फिर उसको हम नया नाम दे करके उसको क्रिएट करके अपडेट कर लेते हैं, राइट. नेक्स्ट वन इज़ अप्लाइंग स्टाइल्स. तो जो भी हमने स्टाइल्स क्रिएट किए या हम जो भी ऑलरेडी इनबिल्ट स्टाइल्स में से कुछ चूज़ करके ले रहे हैं तो वो हमको क्या करना होता है, अप्लाई करना होता है. तो टू अप्लाई अ कैरेक्टर स्टाइल और पैराग्राफ स्टाइल वॉट एवर टू एग्जिस्टिंग टेक्स्ट, select the text and then double click on the name of the style in the character style list or paragraph style list. To apply any other style, put the cursor in the paragraph, frame or page you want to modify and double click on the name of the style. तो कैसे हमको इसे अप्लाई करना होता है, हम सबसे पहले अपने उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं जहाँ पर हमको स्टाइल अप्लाई करना होता है. उसके बाद हम स्टाइल्स के लिस्ट पर जाते हैं और वहाँ से जो भी हमको स्टाइल चाहिए वहाँ पर हम डबल क्लिक करते हैं, और जैसे हम डबल क्लिक करते हैं तो वो जो स्टाइल है उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, फॉर्मेटिंग प्रॉपर्टीज़ हैं, वो हमारे सिलेक्टेड टेक्स्ट पर अप्लाई हो जाती हैं, राइट. तो अभी हम ये देखेंगे www.openoffice.org ये वेबसाइट है जी. इस वेबसाइट पर जा कर के आप अपना ओपन ऑफिस को डाउनलोड कर सकते हैं. दैट्स ऑल बच्चों. गॉड ब्लेस यू ऑल.